Big breaking news coming in. Did the Ashok Gehlot government ignore the intelligence alert over the Jodhpur clash? Rajasthan intelligence had alerted about communal tension on 2nd of May itself, and yet you saw what happened in Jodhpur right there. So the big question here is, did the Gehlot government ignore the intelligence alert over the clashes in Jodhpur? We're getting some reaction coming in. Listen it. निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। रात की घटना होने के बाद में रात भर सब कुछ जो है क्रिया प्रतिक्रिया बातचीत होने के बाद में अगर सुबह शहर में 20 जगह घटनाएं होती है, इसका मतलब प्रशासन गंभीर नहीं था या किसी न किसी अदृश्य दबाव के तहत काम कर रहा था। निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। रात की घटना होने के बाद में रात भर सब कुछ जो है क्रिया प्रतिक्रिया बातचीत होने के बाद में अगर सुबह शहर में 20 जगह घटनाएं होती है, इसका मतलब प्रशासन गंभीर नहीं था या किसी न किसी अदृश्य दबाव के तहत काम कर रहा था। All right, so big breaking news coming in right there, as we already have reported about the Rajasthan intelligence that alerted the state government about the communal tension on 2nd of May. After that too, you saw the kind of communal clashes that broke out in Jodhpur. And of course, police had to resort to lathi charge to bring the situation under control. There was curfew that was imposed in several areas in Jodhpur as well. So the big question here really is, if the Ashok Gehlot government knew from the Rajasthan intelligence about likely communal tension on 2nd of May, how is it that this took place? Did they ignore the intelligence warning? Why were they not prepared? These are big questions at this point of time on the back of the news that is just trickling in about how Rajasthan intelligence alerted the state government about the communal tension. So if there was a warning that was given, the big question here is, how can the state administration ignore this warning? Devankur Badhavan is now joining us for the very latest on this. Dev, we are reporting about how Rajasthan intelligence alerted about the communal tension. Then the question arising is, did the Gehlot government did not find it essential to pay heed to this warning? Well, that is what has emerged, that there was intelligence input that this kind of a thing could have happened. In fact, I've also spoken with the senior police officials, and they mentioned that that there was additional deployment on the occasion of Eid, but despite that, the communal violence happened. I have Union Minister Gajendra Singh Shekhawat with me right now. Gajendra ji, एक अभी खबर आई है कि पहले से इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरह का कुछ हो सकता है। ये बात 2 मई को ही आ गई थी, पर उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरह से उपद्रव हुआ 3 तारीख को। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से इंटेलिजेंस फेलियर रहा क्या ये? देखिए, चाहे जोधपुर हो और चाहे करौली हो, रिटन इंटेलिजेंस इनपुट थे। करौली में ये बताया गया था कि इस तरह की घटनाएं शायद जो है छत पर से पत्थर फेंकने की घटना हो सकती है। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि हर छत के ऊपर पुलिस को डिप्लॉय किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो, लेकिन फिर भी हुई। न डिप्लॉयमेंट हुआ, न कोई रोकने के लिए कार्रवाई हुई, और न ही सरकार ने उसको अपना फेलियर माना। और अभी जोधपुर में भी ऐसा ही हुआ है। आप खुद कह रहे हैं कि पहले से इंटेलिजेंस इनपुट था, और इंटेलिजेंस इनपुट दूर है। 1 तारीख को इंटेलिजेंस इनपुट हो सकता है। 2 की रात में हुई घटना, सुबह 6 बजे हुई शांति वार्ता, उसके बाद में जब ये जानते हुए कि 30, 40, 50 हज़ार लोग एक साथ एकत्रित होने वाले हैं, शायद कुछ अनहोनी घट सकती है, कम से कम इतनी कल्पना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए थी। इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, सिंपल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, वो भी अगर नहीं काम में ली गई है, और उसको बचाने के लिए भी उस पर भी पर्दा ढांकने की कोशिश राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों के ऊपर। सर, सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि आसपास के जो एरिया है वहां पे कई जगहों पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, बट पुलिस का कहना है कि 100 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अभी तक। पर आपका क्या कहना है? आप कुछ टाइम पहले कह रहे थे कि जो पीड़ित पक्ष है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभी मैंने ये नहीं देखा है जो पीड़ित पक्षों की, क्योंकि नेट बंद है, कर्फ्यू लगा है, मेरा संपर्क सीमित है, लेकिन जो मुझे जानकारियां मिली है कि पीड़ित लोगों को उठा करके घर से गिरफ्तार किया जा रहा है। अब जो शेष लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें कितने वास्तव में दोषी हैं और कितने लोगों को फौरी तौर पर गिनती बढ़ाने के लिए गिरफ्तार किया, ये तो प्रशासन सूची दे, तभी पता लग पाएगा। लेकिन ये तय है, आपके टीवी चैनल और आपके जैसे सारी टीवी चैनल्स पर जितने फुटेज हैं उनमें से आइडेंटिफाई करना प्रारंभ करें।
जो सारे स्ट्रीट पर कैमराज लगे हुए हैं, अभय कमांड सेंटर जिन कैमराज से कनेक्टेड है, उन सब में सबके फोटो आए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना को शुरू करे। ऐसे पुलिस बताए कि उनमें से कितने आइडेंटिफाइड मुजरिमों को उन्होंने गिरफ्तार किया। गजेंद्र जी, गहलोत साहब ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है इंडिया टुडे ग्रुप को। उन्होंने कहा है कि जो दंगे हैं ये बीजेपी के द्वारा प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत भड़काए गए। उन्होंने कहा कि करौली के समय ये हुआ और बीजेपी जो है वो चुनावी मोड में आ गई है। राजस्थान में 18 महीने चुनाव को पड़े हैं, तो इस बड़े आरोप के बारे में क्या कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी चुनाव मोड में थी, बीजेपी चुनाव मोड में है, और ये लोकतंत्र में चुनाव मोड में रहना हमारा अधिकार भी है। और राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, राजस्थान जो हाड़ी रानी, पन्ना धाय और रानी पद्मिनी का क्षेत्र था, जो राजस्थान जो मीरा जी के नाम से जिस राजस्थान की पहचान थी, गोरा धाय के नाम से जिस राजस्थान की पहचान थी, उस राजस्थान को इस दुर्भाग्यपूर्ण सरकार ने राजस्थान को रेप कैपिटल बनाया। राजस्थान को बच्चियों के प्रति बलात्कार की सबसे बड़ा प्रदेश हो ऐसा प्रदेश बनाया। SC ST के प्रति अपराध की दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश बना करके खड़ा कर दिया। और उसके बाद में उन सारी घटनाओं को समाज के बीच में लाना और उसके ऊपर ठीक से कार्रवाई हो, ये सब रुके हैं। अगर इन सब को उजागर करना और इन सब के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना, अगर चुनावी मोड में आना है, तो हम चुनावी मोड में थे, हैं और रहेंगे। जो उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी थी, ये प्री प्लान्ड षड्यंत्र था, ऑर्केस्ट्रेटेड था, इसके बारे में पहले भी आपसे कहा, अगर ये ऑर्केस्ट्रेट था, अगर ये प्री प्लान था। कल कोई टीवी चैनल का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे पूछा गया कि अगर ये सब कुछ था तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो और अगर ये था तो आपके पास में इसका एविडेंस क्या है? तो उन्होंने कहा एविडेंस तो जांच में मिलेगा और जांच के बाद में मिलेगा, तो जांच पे एविडेंस। और उन्होंने खुद ने कहा कि आरोप लगाना बहुत आसान है, तो आरोप लगाना आसान है, एविडेंस आपके पास में आपकी पुलिस एकत्रित करे और कार्रवाई करे। मैं तो चाहूंगा कि हमने अगर गलत किया है तो हमको आप गिरफ्तार करिए, आपकी पुलिस के पास में ताकत है, आप गृह मंत्री हैं, आप करिए कार्रवाई। कांग्रेस एक और आरोप लगाती है गजेंद्र जी के देश में बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पर है और इस मुद्दों पर बीजेपी विफल रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई है और इसलिए वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ने की जादूगरी उनको बहुत खूबी के साथ में आती है। और ये सब आरोप लगा करके वो उन्हीं को खुश करना चाहते हैं जिनके पास में उनका इस्तीफा पिछले 25 साल से रखा हुआ है। कहीं वो फाइल खंगाल करके झाड़ के मिट्टी हटा करके वो कागज़ बाहर न निकाल लें, इसलिए संघ पर और भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय अमित शाह जी पर, इन सब पे लांछन लगाने की कोशिश वो करते रहते हैं। पर एक बड़ी बात यह है कि खुद ये जोधपुर गृह जिला है राजस्थान के मुख्यमंत्री का, वो यहीं से विधायक है, पर वो यहाँ नहीं आए हैं। उनका जन्मदिन था कल, आपको लगता है उनको आना चाहिए था? देखिए, निश्चित रूप से आना चाहिए था। जोधपुर की जनता ने उनको चुनकर भेजा और आज नहीं, पिछले 5 दशक, मेरी जितनी उम्र है उतनी तो उनकी राजनीतिक वय है, उनको चुनकर के भेजा है। लेकिन वो यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो उनका इस्तीफा जिनके पास में पड़ा है वो आने वाली हैं उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए, मैं कहीं कमी न रह जाए, उनका खैर मकदम करने में कहीं कमी न रह जाए, उनका नाश्ता ठीक से बनेगा कि नहीं बनेगा उसको चेक करने के लिए, कुर्सी उनकी ठीक से लगी है कि नहीं, कहीं उनको गर्मी, राजस्थान की गर्मी का लू का थपेड़ा नहीं लग जाए, उस सब की चिंता करने के लिए वहाँ लगे हैं। राजस्थान, जोधपुर के लोग आग में झुलस रहे हैं, जोधपुर के लोग दंगा झेल रहे हैं, जोधपुर के लोगों के घर पर अत्याचार हो रहा है, जोधपुर के लोगों पर तेजाब फेंका जा रहा है, राह चलते पीठ में चाकू घोंपे जा रहे हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो बीजेपी है वो बार बार इन मुद्दों को इसलिए उठा रही है क्योंकि वो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम we'll get you the complete interview with the union minister in just about a bit, but we are getting a reaction coming in from Ashok Gehlot as well. Listen in. ये जो धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान के देश के अंदर, जिस रूप में ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा मुल्क के साहित्यकार, पत्रकार, लेखक सब चिंतित हैं और इनको कोई शर्म भी नहीं आ रही है। खुला नाच हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि इनको घमंड आ गया बुलडोजर के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही है इनकी असलियत को और माकूल समय आने पर इनको जवाब मिलेगा। ये जो धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान के देश के अंदर, जिस रूप में ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं,
पूरा देश देख रहा है, पूरा मुल्क के साहित्यकार, पत्रकार, लेखक सब चिंतित है और इनको कोई शर्म ही नहीं आ रही है। खुला नाच हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि इनको घमंड आ गया बुलडोजर के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही है इनकी असलियत को और माकूल समय आने पर इनको जवाब मिलेगा।